Assalamu alaikum students, hope you are doing good, especially the odd ones. Okay, so today there were only 2 students in the class because even numbers they are less in this class, and 2 or 3 students they have taken permission from the VRO office for to be online. Okay, but I would prefer you to please, if you have the chance for F2F sessions, please join F2F sessions. And we don't know due to corona when we would face the adverse situations. So please आप लोग आने की आदत डालें. Now this is another topic, very crucial, very important topic, that is functional groups in organic chemistry. Now first we need to know what is meant by functional group. Yes, functional groups, these are actually specific substituents or moieties within molecules, and they may be responsible for the characteristic chemical reactions of those molecules. जहाँ ये मौजूद हैं, वो molecule किस तरह behave करेगा, that is defined by and instructed by functional groups. और यही functional groups जो हैं, they will undergo the same or similar chemical reactions regardless of the size of the molecule regardless of the size of the molecule. यानी कि it's only the functional site which is actually participating in the chemical reactions. So when we go further, what would I say? That functional groups are specific groupings of atoms within molecules that have their own characteristic properties regardless of the other atom which is present in a molecule. So इसकी मैं आपको जो है क्या कहते हैं explanation थोड़ी सी I would like to give like this कि every molecule जो है, every जो compound है, उसके 2 parts होते हैं. There are 2 parts of a compound. So for example, one part is called active part. Okay, active or reactive, I would like to say active. ठीक है, active. और दूसरा होता है नॉन एक्टिव. नॉन एक्टिव, राइट. तो 2 पार्ट्स होते हैं. अब जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट जो होती है, ये कुछ भी हो सकता है. सिंगल एटम भी हो सकता है, लाइक Cl, ठीक है, लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. Or it can be in the groups also. For example, OH. Okay, sometimes C, O, O, H. Sometimes C, O, O, R. Okay, sometimes only CO. Okay, and so on. Sometimes this group is also there, because when this group is present within the structure, so the compound is actually it's a aromatic. So ये different forms में आपके पास वहाँ पर मौजूद हैं. So next we go to the second slide. ठीक है, then we come to the functional group. So the typical organic chem course, ठीक है, there are about 14 functional groups that are very important and crucial for the students to learn or understand. With ठीक है, तो ये this is तो first हम most commonly चीजों को आगे लेके चलेंगे, but first of all you need to understand कि what is the functional groups. तो the point is that functional groups जो हैं, already we have identified them as a specific substituents or moieties, right? तो point ये है कि for example हम इसको explain करते हैं इस तरह कि all the chemical properties are usually dependent on the functional group. So functional groups are groups of one or more atoms of distinctive chemical properties, no matter what they are attached to.
इनकी अपनी जो रिएक्टिविटी है, ये रिएक्टिविटी का इन्फ्लुएंस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर होता है, ठीक है, एंड द एंटायर मॉलिक्यूल विल बिहेव लाइक दैट। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं इसमें और जो फंक्शनल ग्रुप्स में नॉर्मली अगर हम बॉन्डिंग को देखें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो सारी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब हमारे पास, हम अगर क्लासिफाई करें ना इसको, फंक्शनल ग्रुप्स को, तो हमारे पास ब्रॉडली दो तरह के आते हैं। एक वो आते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, विच आर नोन एज हाइड्रो, राइट, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इफ यू गो टू द नेम, you can understand that these are the compounds which are made of only of hydrogen and carbons, right? सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स एक ऐसी क्लास ऑफ ये इसमें कंपाउंड्स हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में। तो इनको हम हाइड्रोकार्बाइल्स भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को ना। तो हाइड्रोकार्बन्स आर अ क्लास ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज डिफाइंड बाय फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बाइल्स। यहाँ पे अगर आप बी के बाद YLS लिखते हैं, और हाइड्रोकार्बाइल्स मीन्स दैट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट but vary in the number and order of connectivity. Okay, so हम इसको आगे चल के देखते हैं। अब जब हमने ये स्टेटमेंट दे दी है, when we have given the statement that hydrocarbons that contain only hydrogen and carbon but vary in number and order of connectivity, तो उस जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो अल्टीमेटली वी कैन से, जो इस बेसिस पे हाइड्रोकार्बाइल्स के जो बेसिस पे हम जब इनकी डिवीजन मतलब कैटेगराइज करते हैं, तो हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 एल्केन्स, नंबर 2 एल्कीन्स एंड नंबर 3 इज एल्काइंस। सिंस हम इसको ले रहे हैं कि कनेक्टिविटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर, सो कनेक्टिविटी में सिंगल कनेक्टिविटी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की कनेक्टिविटी होती है। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड्स की होती है कनेक्टिविटी, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड की। सो बाय द प्रेजेंस ऑफ ये जो तीन हैं आपके, दीज आर एक्चुअली द फंक्शनल साइट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स से ही बनते हैं, बट इनका जो ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी है या ऑर्डर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है वो डिफरेंट है। और वो 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज सिंगल, नंबर 2 इज डबल एंड नंबर 3 इज ट्रिपल। तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब this is very reactive, okay, because 4 electrons are embedded in double bond, and this is further very reactive because 3 pairs of electrons are there, means 6 electrons are present in triple bond. So alkane में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसके अलावा फिर हम जब नेक्स्ट आगे चलते हैं इनके ऊपर, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो आ जाता है, सॉरी, जो ग्रुप आता है वो है अल्कोहल्स, ओल्स, ओल्स। दिस इज द एंडिंग ऑफ ओल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसमें। व्हाट इज नोन एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप? दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सिल। अल्कोहल्स में कौन सा ग्रुप है आपके पास? हाइड्रोक्सिल, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, तो व्हेनेवर दिस कंपाउंड, अच्छा, अब कंपाउंड के मैंने आपको बताया था कि 2 साइड्स होती हैं। इफ वी गो टू द प्रीवियस स्लाइड, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक्टिव साइट है जो कि डिफाइन करती है प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और द रिएक्टिव थिंग्स, और दूसरी होती है नॉन रिएक्टिव साइट। तो नॉन एक्टिव साइट जो होती है वो प्योरली मेड अप होती है हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। किसकी में? हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन्स, जो भी आप कहें, सो हाइड्रोकार्बन्स के लिए होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल R। सो अगर हम कंक्लूड करें अपनी डिस्कशन को, तो हम कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है R पार्ट, जिसे कनेक्टेड पार्ट कहते हैं, और दूसरा होता है आपका
रिएक्टिव साइट जो कि डिफाइन करती है इसकी नॉट ओनली द रिएक्टिविटी बट ऑल्सो द क्लास, और प्रिडिक्ट करती है टू एग्जिबिट सर्टन वेरी स्पेसिफिक डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज। अब R वेरिएबल है, value of R can be 1 carbon, 2 carbon, and so on. Is that okay? So next we move to this slide again. So next आते हैं हमारे पास acids, ठीक है? और acids में हम किस चीज को फोकस करते हैं कि अगर हमारे फंक्शनल साइट जो है वो like this है, C O O H. If this whole group is present in the molecule, the class is known as carboxylic acid. So this is called carboxyl, and normally it is present like this. R variable, C double bond O, ठीक है, and again OH. So this is called acids. Then we come to esters. Esters में हमारे पास जो ग्रुप आ जाता है esters का, वो आ जाता है COR. Is that clear? COR. So let's draw it कि यहाँ पर आपने H को रिमूव करना है, ठीक है? H को आप रिमूव करेंगे तो आपके पास जो अगला चीज आप लगाएंगे that would be R dash. What is the meaning of dash? Dash means के ये दोनों सेम नहीं है, R डिफरेंट है। हो सकता है कि ये methyl हो, methyl ग्रुप CH3 ग्रुप हो, राइट, और ये ethyl हो, CH3, and this is called CH2. So if this situation, तो they are esters. अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, नेक्स्ट है आपके पास. So let's come over here to this slide. Then I will explain you this later on. This is एल्केन्स में फंक्शनल ग्रुप नन होता है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड्स हैं. साइक्लोएल्केन्स, द एल्केन्स व्हिच आर इन द क्लोज स्ट्रक्चर, उसमें भी आपका ये होता है. अल्काइल हैलाइड्स कौन होते हैं? जिसमें कार्बन में 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन. फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका C, ठीक है, मैथिल ग्रुप, 1 मैंने हाइड्रोजन जो है उसकी जगह पे मैंने लगा दिया X, क्योंकि X मींस फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो क्लास कहलाएगी अल्काइल हैलाइड्स. ये डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, अगर कार्बन के साथ मैंने OH लगा दिया, इफ आई सब्स्टिट्यूट OH, राइट, OH, तो क्लास आपकी क्या कहलाएगी? अल्कोहल्स. और अगर मैंने इसके साथ एक और यहाँ पे करके और C लिख दिया, CH3 जो भी मेरी वैल्यू हो, and rub this part, rub with this part, this COC linkage, wherever it is present, the class is known as ether. Next हमारे पास आ जाता है एल्डिहाइड. So this is the structure. अगर आप यहाँ पे आपकी वैल्यू, क्योंकि कार्बन for all times it has to fulfill 4 valency, RCOH, this is aldehyde. और अगर H की जगह पे again I put another carbon or methyl group or R, तो this is called ketone. Now which is, ये हमेशा aldehydes and ketones, they are together discussed. The difference only is the presence of hydrogen in aldehydes, and there is no hydrogen in aldehydes, but it's the group which is actually known as methyl groups. There is no single independent hydrogen. So due to the presence of hydrogen,
this aldehyde is very, very, very reactive as compared to ketones. अच्छा, अब क्या है कि इसी कार्बोनाइल कार्बन पे मैं ये ग्रुप जो है वो ऐड कर देती हूँ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं, और इसी के साथ में OC ऐड कर दूंगी तो द क्लास विल बिकम द एस्टर्स. सो इसी, अब अगला मेरे पास स्ट्रक्चर है C फॉर एग्जांपल. ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, राइट. इसमें मैंने नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो की है, ठीक है. नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है और 2 R हैं. ये R डैश मीन्स के दोनों R डिफरेंट हैं. इसी के साथ मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट जब कर दूंगी, ये अमीन्स हैं, ठीक है. इसी C को अगर मैं कनेक्ट कर दूं यहाँ ऑक्सीजन में, तो इट विल बिकम अमाइड. और इसी C के साथ अगर मैं नाइट्रोजन को कनेक्ट कर दूं, ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, तो कंपाउंड्स क्लास इज नोन एज नाइट्राइल. इसी तरह ये एरोमेटिक रिंग है, ठीक है. ये एरोमेटिक रिंग है. इसके ऊपर मैं सब्स्टिट्यूशन, इफ आई डू द सब्स्टिट्यूशन लाइक दिस, तो ये फिनोल क्लास बन जाएगी, ठीक है. और इसीलिए इसके ऊपर ही अगर मैं हाइड्रोक्सिल की जगह पे, इफ इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल, इफ आई सब्स्टिट्यूट methyl group, the class is known as toluene. इसी में अगर मैं दूसरा ग्रुप मैथिल कर दूंगी सब्स्टिट्यूट, तो ये बन जाएगा आपका xylene. Okay, and so on. So this is, let's move to the previous slide so that I can explain you some more things about these functional groups. I hope you understand. Now the question is that when you are able to recognize the different functional groups, you know what is what made up of. Then let's talk about the assessment. कि हम functional groups की how we can go for the assessment. We can give you one mega structure, okay? In that mega structure you are supposed to identify. For example, अगर हम यहाँ की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास ये एक साइट बनती है और इसको हम नाम देते हैं CH3 का, ओके. इसको हमने आइडेंटिफाई किया, इसको वी कॉल इट COOH. और ये जो है मैंने साइट ग्रीन में जो आइडेंटिफाई की है, दैट इज एक्चुअली NH2 ग्रुप है यहाँ पे, अमीन्स. सो कहने का मतलब है कि ये बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे हैं, और मल्टीपल और ओरिएंटेड मॉलिक्यूल है, बिकॉज समटाइम्स इट बिहेव लाइक अ एसिड एंड सब. अगर ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो ये एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है, एंड सो ऑन. सो इस किस्म की एग्जांपल्स जो हैं वो हम आपको एग्जाम्स में देते हैं. सो नेक्स्ट हम इसकी कैपेसिटी को अब हमने फोकस करना है लास्टली, टू फोकस ऑन द कैपेसिटी ऑफ कार्बन. सो मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव अ skeleton that is entirely made up of CC bonds. Now these CC bonds are in different kinds: single bond, double bond and triple bond. Why? Because carbon has the capacity to build 4 bonds at a time. So these 4 bonds, जैसे होता है ना कि आप बाल खुले भी छोड़ लें, आप बाल बांध भी लें, अब इट्स अप टू यू हाउ यू कैन गो फॉर इट, राइट. तो स्केलेटन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें जो होते हैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स, आपको पता है कि दे आर प्रेजेंट देयर. अगर कोई हेट्रो एटम बीच में आ जाता है, और वो मोर स्पेसिफिकली दे आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये भी मौजूद होते हैं, they are also present. और I have also explained to you कि when we write the bond line structure or the structural pattern, ठीक है, in which the lines are only drawn and only heteroatoms are written.
Then we come to the different connectivity of bonds. अगर आप check करें different connectivity, तो मीथेन में इस तरह है, प्रोपेन ये एसिटाइलिन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक दूसरे के साथ एंगेज्ड है, और यहाँ सी और ओ डबल बॉन्ड के साथ जो है वो शो कर रही है. यहाँ आ जाए एसिटिक एसिड में, अगेन ऑल आर द सिंगल एक्सेप्ट कार्बन इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स. आप देखें ठीक 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बना रही है, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड विद 2 एटम्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन. और यहाँ देखें ऑल द सिंगल बट द कनेक्टिविटी इज via oxygen, so that class is known as ether. Either आप आ जाएं all single bonds, but this group OH is present, so the compound is ethyl alcohol. And here you can see multiple groups. यहाँ पर methoxy group है, ठीक है, COOR, ठीक है, एस्टर ग्रुप भी आ सकता है. और यहाँ पर आपके पास एसिडिक पार्ट है, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर COOH है. तो ये मल्टीपल ग्रुप्स जो हैं फंक्शनल के, दे आर प्रेजेंट इन एस्पिरिन. सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? So organic compounds are commonly classified and named based on the type of the functional group. So basis of classification of organic compound is the functional group. ये क्या है? What is this? It is an atom or group of atoms that influences the way the molecule functions, reacts or behaves. So the center of reactivity भी हम कहते हैं कि the center of reactivity is in an organic compound is the functional group. ये सारा I have already explained to you. And this is all about your today's lecture. And those who are absent today, even students who are absent today, they are going, I have marked absent for them, and you will suffer because the attendance जो है वो 10% की grading है. So I hope that you understand this lecture properly. Thank you so much.